विड्रॉ मत करिएगा। ये लो, रुकना भी। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, everybody, children. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Very good morning. ज्वाइन तो हो गया। गुड मॉर्निंग। Good morning, children. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning. पत्तियां मत डालना मेरे उसमें भैया। Very good morning. As soon as you wish, children, please keep your mics off. Keep your mics off. Keep your mics off, dear children. Very good morning to each one of you. Good morning, ma'am. Very good morning, children. Good morning, ma'am. Very, very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, Bachapati. Morning, ma'am. Welcome and welcome, welcome, welcome. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, children. Please keep your mics Good off. morning, ma'am. Keep your mics off, children. Keep your mics off. Good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, Good children. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. मम्मी मम्मी Jay, please keep your मम्मी mic off. Keep your mic off. Children, keep your mics off. Mics off, Shivam. गुड मॉर्निंग हाँ बोर्ड पुसून इथे ठेवून तो Okay. Welcome and good morning, children. We'll wait a little bit more. और मैं आपका भी And please keep your mics off and camera on. All the mics off, अब ये आ गया camera on. Keep your mics off. Excellent, children. Mics off, mics off. Super, super, children. Kaushiki, please keep your camera on. वॉइस नहीं आ रही हमारे लैपटॉप में अब वॉइस Keep your camera on. Can you all hear me, children? Can you all hear me? Can you all hear me? Am I audible to all of you? मैम आपकी वॉइस मुझे नहीं Just आ give रही me a है thumbs up. Excellent. Excellent. Wonderful. Wow. Kavish, Ma'am, Anvi, आपकी voice Shivam, मुझे नहीं आ रही Kavya, है। Kaushiki, please keep your mics आपकी off. वॉइस मुझे नहीं आ रही है Quickly, mics off, mics off. जल्दी जल्दी mics off करेंगे तो हम अपने फ्रेंड्स से भी मिलेंगे और आगे के लिए हम पढ़ेंगे कि आज क्या होने वाला है. ओके? नहीं मैम ठीक Mics off. Yatharth, mics off. Toshiki, mic off. कलर करूंगा All right. So I can see most of you have actually muted yourself. Excellent. So, are we all ready? Are we all ready? Are we all ready? Excellent. Are we all ready? Are we all ready to fly? Okay, wonderful. So,
Are you ready with your paper and pencil? Even I'm ready. This is my paper and pencil for you all. Okay? So that you all can see, right? Okay? Is this board visible to you all? Board visible to you all? Excellent. Wonderful. Okay. All mics off. All mics off. Excellent, children. Okay. Okay, fine. Let me just mute all so that I can start the session soon, because I don't want you all to wait anymore, because this session is long awaited. And are you all ready? Are you ready? Huh? Do you hear me? Do you hear me? No? Oh, what am I hating? Oh. You know? What am I eating? What am I eating? I feel something. I am feeling. I am speaking. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you all hear me? Now. Okay. Manisha ma'am, I'm not audible to you. Okay. No go. See, he's scolding to me. He's saying, what are you speaking? He's saying, what are you speaking? Hi. Hi, all of you. Hi, everyone. Hi, my munchkins. Hi, my lovely friends. I missed you all. Okay, पता है ये मुझे डांट रहा था, कह रहा था क्या कह रहा है करके. मैं कह रही थी कि मैं तो कॉन्सोनेंट्स यूज ही नहीं कर रही थी, मैं तो वॉवल से बोल रही थी. ये कॉन्सोनेंट और वॉवल क्या है? अगर कॉन्सोनेंट नहीं होता तो आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाते, और अगर वॉवल नहीं होता, जैसे कि टैटो टैटो टैटो, देखो नहीं समझ पाए ना. इसीलिए तो इन दोनों फ्रेंड्स का होना बहुत ही जरूरी है ना? इन दोनों फ्रेंड्स का होना बहुत ही जरूरी है. तो अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? इन्हीं फ्रेंड्स के पार्टनरशिप को कहते हैं. इन्हीं फ्रेंड्स के पार्टनरशिप को कहते हैं. पार्टनरशिप यानी कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के पार्टनरशिप. अब तो नहीं डांटोगे ना? खुश ना? Okay, he's happy and he has understood. Have you all understood? Have you all understood? Okay, brilliant. So my dear children, आज हम लोग यही vowels और consonants के बारे में समझेंगे. Everybody know this? सबको तो ये पता ही है. ये क्या है? Vowels है. और इनके अलावा जो बाकी के letters है, उन्हें क्या कहते हैं? Consonants, right? तो आज हम यही समझेंगे फोनेटिक्स के माध्यम से. फोनेटिक्स, ये फोनेटिक्स होता क्या है? फोनेटिक्स सब कहते हैं. ये फोनेटिक्स होता क्या है? क्या आपको पता है? अभी मैं क्या कर रही थी? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? So can you hear me was a proper sentence speaking with the use of all the alphabets, making a word and combining it with a sentence. I'll go slow. Letters को जोड़कर शब्द बनाना,
शब्द को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। इसी तरह से हम बात करते हैं, पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। करेक्ट? करेक्ट? यस। नाउ दीज वर्ड्स, इनके भी स्वर है, इनके भी स्वर है, राइट? इनके क्या स्वर है? इनके क्या स्वर है? इनके स्वर हैं जैसे कि वॉवल्स, वॉवल्स यानी कि स्वर, राइट? एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, राइट? तो कॉन्सोनेंट्स एंड व्यंजन, दैट इज जिससे हम शब्द बनाते हैं बिना मात्राओं के। और मात्राएं कैसे निकलते हैं? वॉवल्स से, राइट? स्वर, स्वर। तो ये होते क्या क्या है आज हम ये समझेंगे। आपको ये लेटर्स पता है फोनेटिक्स के? सबको ये लेटर्स तो अच्छे से पता है ना? है ना? पहचाने से है, सबको आते हैं ये, राइट? दीज आर ए बी सी। ये तो हुए इनके नाम। क्या हुए? ये हुए इनके नाम, ए बी सी, ठीक है? ये हुए इन लेटर्स के नाम। अब इनके कुछ आवाज भी हैं बच्चों, जिनको हम फोनेटिक्स कहते हैं, जिनको हम फोनेटिक्स कहते हैं। इन अक्षरों, इन लेटर्स के आवाज को हम फोनेटिक्स कहते हैं। आप समझ में आया? जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम शब्दों को पढ़ सकते हैं, हम किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं। Am I clear to all? Am I clear to all? Am I audible to all? Lovely, lovely, excellent. So, अब जबकि आपको पता है कि इन लेटर्स को क्या कहते हैं, इनका नाम, और इनके आवाज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? रिपीट, phonetics. Repeat, phonetics. Excellent. Repeat, all of you. I can see everyone. Phonetics. Lovely. Wonderful. All right. So, अब इन अक्षरों के जो आवाज है उनको हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे बच्चों? क्या आप मुझे बता सकते हैं हम ये आवाज क्यों सीखेंगे? ये हम आवाज इसलिए सीखेंगे क्योंकि इसे सीखने से हम शब्दों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, हम शब्दों को अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे कि आपने बोला ख एट, आपने बोला ख एट, इसे हम कैसे लिखेंगे? सी ए टी, राइट? ये हमने लिखा कैट, ये स्पेलिंग है सी ए टी। आपने पढ़ा सी ए टी, तोड़ तोड़ के पढ़ा। अब इसको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ख एट, ख एट। कैन यू लिसन? कैन यू सी माई लिप रीडिंग प्लीज? इस सेशन में कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की आंखें मेरे इस माउथ पीस पे होना चाहिए। सबकी आंखें माउथ पीस पर, सबके कान अलर्ट, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पे ही बेस्ड आपको पूरा सेशन देने वाली हूं। इसीलिए किसी की आंखें जुप जैप नहीं जाएंगी। ओके, ग्रेट। सो ये कैट जो आपने लिखा, या फिर अगर हम कुछ और डिफिकल्ट वर्ड ले, जैसे कि ड्रम, ड र अ ड र अ ड र अ रिपीट। तो जाके हम ये वर्ड पढ़ते हैं ड र अ जोड़िए, ड्रम। मजेदार है? तो हमें डिफिकल्टी नहीं होती है पढ़ने में। तो हम फोनेटिक्स के बारे में आज समझेंगे। तो रिपीट आफ्टर मी व्हेन आई स्पीक। क्या बोलूंगी मैं बोलूंगी जो सेंटेंस, वो आपको रिपीट करना होगा। ओके, विल यू डू इट विथ मी? Will you do it with me? Wonderful. Right. So, phonetics. Phonetics, it is a method. It is a method. मैं आपको शो करती हूं, आप मेरे साथ बोलिए। Okay. Just a second, children.
Can you all see? Is it visible to all? Do not touch your device. No one is going to touch your device. Okay? क्योंकि अगर आप डिवाइस को छुएंगे तो वहां पे जो ड्राइंग आप बनाएंगे ना एक्सीलेंट, वो मेरे मैटर को ढक देगा, इसलिए कोई भी ड्राइंग नहीं करेगा। अभी ड्राइंग क्लास नहीं है बच्चों। ओके, फैंटास्टिक। सो लेट्स मूव अहेड। अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है। ऑलराइट, do not speak or write anything, just follow me, just follow me। ये देखिए, आज हम phonics and phonemes के बारे में समझेंगे। This is phonics, okay? phonics मतलब ही कहते हैं कि जो हम अल्फाबेट, जो लेटर्स हैं, उनके आवाज को समझेंगे, और जो हम आवाज निकालते हैं ना, आ, रे, गा, I'm not a good singer, sorry, okay? So ये होता है हर एक इंसान की अलग अलग आवाज, ठीक है? हर एक इंसान की अलग अलग आवाज, जैसे कि मेरी अभी करके आवाज निकल रही है, आप लोगों की प्यारी प्यारी सी आवाज निकलेगी, ठीक है ना? ओके, तो अब हम A to Z बिगनिंग साउंड का थोड़ा सा देखेंगे। दैट इज ये बिगनिंग साउंड कैसे स्टार्ट होते हैं। ओके, ऑल राइट, let's start it. Can you all hear it? Ah, ah, b, 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 k, k. Can you all hear this? D, d, right? ये सब क्या है? ये ABCD के आवाजें हैं, phonics। यही है ABCD के आवाज। Right, children? E, 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 च, च, च। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी जिससे कि आपको आगे के बारे में भी पता चले कि क्या है phonics और क्या सीखेंगे हम phonics में। सो इम्पोर्टेंट ऑफ phonics, phonics जो कि मैं अभी आप लोगों से रिपीट करने को कह रही थी, तो ये अब आपके स्क्रीन पे है। क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे? क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे? चलिए तो पढ़ते हैं कस के। ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग विथ मी, आफ्टर मी। phonics, start। phonics, it is a method, it is a method for teaching beginners to read and pronounce। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। read and pronounce word and writing of an alphabetical language। ठीक है, alphabetical language, ये होते हैं phonics। और phonics बहुत ही छोटे स्वर होते हैं, बहुत ही छोटे। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन नहीं याद करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? ये कौन से शब्द होते हैं phonics? जैसे कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कैट और किट लिखा है, फिर क्या लिखा है? स्कैट, स्कैट, स्किट, स्किट। तो ये दोनों शब्द क्या है? इसके आगे जो शब्द आ रहा है वो हल्का सा आ रहा है ना, ऐसे, राइट? सो we are going to learn this, okay? Now after understanding that what is phonics and phonemes, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमें पता चल गया कि इन लेटर्स को हम कैसे उच्चारण करते हैं, तो अब इन लेटर्स के अलग अलग वैरायटी भी होते हैं। बहुत सारे स्वर निकलते हैं बच्चों,
वेरी कंफ्यूजिंग, बट यू आर स्मार्ट इनफ, हम लोग इसको बहुत आसानी से सीख लेंगे. ओके, सिद्धार्थ प्लीज कीप योर कैमरा स्टेडी. शोना, Siddharth Agarwal, keep your phone steady. Excellent, wonderful. Okay, Kavi, keep your camera on. Avni, camera on. All right. So now what we have to do, we have to start writing. और क्या लिखेंगे जो मैं आपको बताती रहूंगी. ठीक है, अभी हमें समझना है कि ये सॉफ्ट जी और सॉफ्ट सी होते क्या है. सॉफ्ट जी और सॉफ्ट सी होते क्या है. देखो, हम बोलते हैं सी, लेकिन आवाज क्या निकलता है. ख, 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 cat, ख, cake, ख, cup, राइट. होता है ना. बड़ी मुश्किल है बाबा. लेकिन सी से एक और वर्ड होता है. क्या होता है. साइकिल, साइकिल, सर्कल, सर्कल. करेक्ट. तो ये जो दो वर्ड है कंफ्यूजिंग है ना, है ना. चलो इनको डांट लगाते हैं, इनकी खबर लेते हैं. चले खबर लेने. ओके, इनकी खबर लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये दोनों लेटर ऐसे क्यों आवाज निकालते हैं. तो खबर लेने पे मेरे रिसर्च करने के बाद मेरे चश्मे के जो एक्सरे विजन से मैंने जो रिसर्च किया था वो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आ रही हूं. ठीक है. तो जो एक्सरे विजन से मेरे पास पता चला, जो मैंने डिटेक्टिव गिरी की ना, उस डिटेक्टिव गिरी से मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाली हूं. कितनों को मेरी इस मिस्ट्री का सोल्यूशन चाहिए. कितनों को. जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो. कितनों को इस मिस्ट्री का सोल्यूशन चाहिए. ओहो, सबको मिस्ट्री का सोल्यूशन चाहिए. तो चलो, मैंने जो मिस्ट्री का सोल्यूशन निकाला है वो मैं आपको बताती हूं और दिखाती भी हूं. तो जब हम सॉफ्ट सी, जब हम सॉफ्ट सी लिखते हैं तो हम सी सिर्फ लेटर का नाम बोलते हैं. सी. ये लिखिए आप लोग, सॉफ्ट सी. स्टार्ट राइटिंग नाउ. सॉफ्ट सी. अब सॉफ्ट सी को जब हम प्रोनाउंस करेंगे ना, तो ये सी की आवाज कैसे निकलेगी. क की तरह, के की तरह आवाज निकलेगी. क, क, ख. ओके. तो ये सॉफ्ट सी को सॉफ्ट क्यों कहा गया है. तो हार्ड सी कौन सा होता है. हार्ड सी कौन सा होता है. अगर सॉफ्ट सी को हम करते हैं साइकिल, सर्कल, राइट. तो हार्ड सी ख वाली आवाज होती है. ख, ख, कैट, ख, खे, राइट. तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे. सॉफ्ट सी के एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे. ध्यान दीजिए, अब सॉफ्ट सी के एग्जाम्पल पे आ जाएगा सर्कल, साइकिल. ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिखिए. सॉफ्ट सी के दो एग्जाम्पल आप लोग लिखिए. सॉफ्ट सी, सर्कल, साइकिल. अब कैसे पता चला कि सॉफ्ट सी सर्कल या साइकिल ही होगा, अभी बताती हूं. ठीक है. आपने वॉवल्स पढ़ा था, राइट. राइट. इन वॉवल्स में हम एक सॉरी, जो लेटर्स यूज होते हैं वॉवल्स के, वो है ई, आई एंड वाई. बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए. ई, आई एंड वाई. जब सी के बाद ई, आई, वाई लगता है, जब सी के बाद ई, आई, वाई लगता है,
तब वो सॉफ्ट सी बन जाता है, बिल्कुल प्यारा सा सॉफ्ट सी, सो स्वीट, यू नो, साइकिल, सर्कल, सॉफ्ट सॉफ्ट, माशी माशी। लेकिन डिटेक्टिव गिरी का दूसरा चरण कि हार्ड सी फिर क्या है, हार्ड सी फिर क्या है और कब बोला जाता है। तो अब हम ये लिख लिया आप लोगों ने, सॉफ्ट सी के एग्जांपल्स, और ये कब बनता है, जब सी इज फॉलोड बाय ई, आई एंड वाई। इट प्रोनाउंसेस एज circle. Repeat, circle. Right? Okay. Now we will come to the hard C. Okay? The hard C. And what does the hard C does? The hard C pronounces as k, k, k. Right? So hard C के examples आप सबको पता है, cup, cake, right? And सबका favorite, cat, right? अब hard C को कैसे पहचाने? hard C के पहचानने के लिए hard C के बाद हमेशा क्या लगेगा? A, O, U and any consonant. A, O, U और कोई भी दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि ब, क, ड, ज, राइट, म। तो ये सब क्या होता है, ये जब सी के बाद लगता है, देखिए लगा है ना, सी यू पी कप, सी ए के केक, सी ए टी केक, कैट, राइट। और अब सी के ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या करते हैं, ये हार्ड सी समझाते हैं। नाउ राइट दिस हार्ड सी। अगर आपने ये लिख लिया है फॉलोड बाय ए ओ यू एंड एनी अदर कॉन्सोनेंट, एनी अदर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ये अगर एग्जाम्पल आपने लिख लिया है तो मैं जी की मिस्ट्री की तरफ चलूंगी, जी की मिस्ट्री की तरफ चलना है। ओके, जी की मिस्ट्री क्या है, जी की मिस्ट्री है वो भी सॉफ्ट और हार्ड होता है। अरे जी हम बोलते हैं सॉफ्ट, लेकिन उसकी भी आवाज हार्ड निकलती है, जैसे कि गोट, गोट, राइट, गोट है ना, गन, गेम, राइट, ये सब हार्ड है। तो अब हम हार्ड सी की जगह वी विल स्टार्ट डूइंग हार्ड जी, हार्ड जी। हार्ड जी में भी वही है कंडीशन जो मिस्ट्री मैंने सॉल्व की थी बच्चों आप लोगों के लिए, वो है ए ओ एंड यू and any other consonant. This will bring the phonics sound of G as G. G. Repeat, G. Hard G will pronounce as G. Right? And this will be after G के बाद जब हम G, U, N, gun, G, A, T, E, gate, G, O, A, T, goat, right? Okay, so this is how we understand the hard G. और इसके अलावा जो बाकी के vowels है उससे G सॉफ्ट G बन जाता है, जैसे कि E
I-N-Y, E-I-N-Y, G के बाद इस्तेमाल करने से क्या बन जाता है? सॉफ्ट G, जैसे कि जिम, जिन, राइट राइट। सो इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं। ओके फाइन, नाउ वी आर नाउ मूविंग अहेड टू, फिर बच्चों स्टोरी टाइम भी है, स्टोरी भी सुननी है, जल्दी जल्दी करना है हमें। ओके क्योंकि ये फोनिक्स हम क्यों सीख रहे हैं? जाते कि आप बढ़िया से बढ़िया स्टोरी बुक्स पढ़ पाए। और हमने जो स्कूल डायरी ऐप में इतने सारे स्टोरी बुक्स आपको भेजे हैं, वो मजे से अकेले पढ़ पाए, किसी की मदद के बिना। इसीलिए तो मैं आज आप लोगों को हेल्प करने आई हूं। बेस्ट फ्रेंड्स होते किस लिए है? बेस्ट फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो वी टीचर्स आर योर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। मानते हो ना? मानते हो कि नहीं? बोलो यस। देखो मनीषा मैम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना? बाकी सब भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, आई नो दैट। ओके सो द मैजिक ऑफ ई आ रहा है भाई, ये देखो मैजिक G-I, यहां पे भी सॉफ्ट सी आ गया। राइट, सॉफ्ट सी, मैजिक, राइट। तो मैंने एक और सॉफ्ट सी का एग्जांपल दिया आपको। ओके सो दिस इज मैजिक ई। अब ये मैजिक ई करता क्या है पता है आपको? चलो मैंने फिर से रिसर्च किया है और डिटेक्टिव गिरी करके मैंने इसके बारे में भी पता लगाया है। सी, आपने केक सबको पसंद है, राइट? केक, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, केक सबको पसंद है। आपके घर में गेट भी है गेट भी है। तो ये गेट और केक, इसमें क्या है? इसमें ई है, तो हम खाके क्यों नहीं बोलते? यंग रेस क्या करके चले गए हैं? ओ माय गॉड, राइट। तो हम खाके क्यों नहीं बोलते हैं? जब के ए का आवाज आ निकलता है तो खाके बोलेंगे ना? नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब के लास्ट में जो ई है ना बच्चों, ये ई अपना मैजिक करता है इस पहले वोवल पर। ये अपना मैजिक, जादू की छड़ी चलाता है इस पहले वोवल पर, और पहले वोवल को पावर दे देता है अपना नाम प्रोनाउंस करने का। नाम क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्रोनाउंस दिस लेटर, आवाज नहीं निकाले, इसका नाम बोलिए, ए, राइट। इसका नाम क्या है? ए। तो ये मैजिक करता है और कहता है भाई रुक जा, तेरी आवाज नहीं, तेरा नाम चाहिए अब की बार। तो नाम क्या है? एक, राइट। सो ए क्या करता है? अपनी आवाज नहीं, अपना नाम बताता है इस वर्ड में। और उसी तरह यहां पे गेट में भी क्या करता है? अपनी मैजिक वॉन्ड चलाता है ई, और ए को करता है गेट। सबको समझ में आया? तो हाथ उठाओ ऐसे, जिंगलाला। ये आई एम लविंग इट। वाह, मुझे ये सेशन बहुत मजेदार लग रहा है। आपको लग रहा है? लग रहा है? वाओ। ओके सो तो गेट और केक, ये तो आपने मैजिक सीख लिया। अब क्या आप मेरे साथ स्टोरी पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप स्टोरी पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम जल्दी से स्टोरी देखते हैं, क्योंकि टाइम है कम, वाइंड अप होने वाला है जल्दी। और मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहती हूँ आपके लिए, सब ले लो। मेरे जो भी मैजिक बैग में है ना, सब मैं देने वाली हूँ, वो है ये। सो अब हम चलेंगे मैजिक स्टोरी की तरफ। All right, so here we start the magic of एक सेकेंड बच्चों, oops, yes, it's about to open. I'm so sorry, वो अचानक ही बंद हो गया। ओके तो हम स्टोरी पढ़ेंगे पहले सी की, और सी की जो आवाज अभी मैंने आपको सिखाया है, आपको पढ़ के सुनाना है, ठीक है?
आप पढ़ेंगे और मैं आपके लिप रीडिंग करूंगी, बाकी भी देख रहे हैं सब लोग। ऑलराइट, सो हियर वी स्टार्ट। ग्रेट। Oh yes, now it is. I hope अब आपको दिखेगा बच्चों। Is it visible to you all? Oh. Okay, no problem. We will just quickly show you a image जिसे कि आप देख पाओ और मेरे साथ ये मैजिक C एंड मैजिक G को पढ़ पाओ। Can you all read this? Can you all read this? Okay, we are going to share this also with you all so that आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। हम एक स्टोरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको कहानी सुना रही हूं अभी, बिकॉज टाइम है कम और मैंने कहा ना मैं कोई भी चीज मिस नहीं करवाना चाहती। सो आई एम गोइंग टू रीड एंड यू आर गोइंग टू लिसन। दैट इज once upon a time. Once upon a time there was a hedgehog. How is hedgehog pronounced? Do you know this? Hedgehog में भी मैजिक सॉफ्ट जी और हार्ड जी है। हेज हॉग, ये देखो बच्चों, हेज हॉग। रिपीट आफ्टर मी, हेज हॉग, राइट। सो हम अब सॉफ्ट जी और हार्ड जी को प्रोनाउंस करेंगे इस स्टोरी में, राइट। और ये स्टोरी है ऐसी। Once upon a time there was a hedgehog named Sedge. Sedge में भी यही है, Sedge की स्पेलिंग भी यही है, SEGDGE, Sedge। देखा? तो इस तरह से आप स्टोरीज पढ़ते हैं और पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप मेरे इस डिटेक्टिव वाले मिस्ट्री को याद रखेंगे ना, उससे जो मिस्ट्री है वो आप याद रखेंगे, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी वर्ड्स को याद रखने में, तो आपको इजी होगा समझने में, राइट। और पता है क्या, मैंने इस सेशन के एंड में आप लोगों के लिए एक, मतलब इस सेशन के साथ एक वर्कशीट भी दी है जो आपके स्कूल डायरी ऐप में आएगा, ठीक है। वो वर्कशीट भी आपको सॉल्व करके मुझे देना है अपनी क्लास टीचर्स को, ठीक है। आपकी क्लास टीचर को आप वो सैंपल शेयर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज अल्फाबेट्स। यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज अल्फाबेट्स, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर तो आपको रीड करने में, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली शेयर वही वाला स्लाइड एंड देन वी कैन गेट ओवर विद दिस सेशन, क्योंकि आप लोग तो अब समझ चुके हैं सॉफ्ट जी, सॉफ्ट सी और सॉफ्ट ई क्या होता है। समझ गए ना बच्चों? समझे हैं कि नहीं? राइट। सो दिस इज the slide which I was talking about. Once upon a time there was a hedgehog named Sedge. He was a large hedgehog who loved to eat oranges. Angie, giraffe,